Greetings, wonderful audience. Amarjit here from Amar PTE classes. Let's start a reading mock test, and these are the modules which are contributing in the reading section. First is the read aloud, summarize written text, reading and writing, filling the blanks, and then reading multiple choice questions. This module has a negative marking. Then reorder paragraph, reading filling the blanks and reading single answers, and highlight correct summary. This is the module from the listening section, and highlight incorrect word. Reading multiple answers and the highlight incorrect words have negative marking. So attempt these modules carefully. So let's start this test, and keep your pen and paper ready. You can also perform this test along with me. Check your phone. Application forms for sharing accommodation. Microphone is working. Record your voice. Microphone is working. Microphone is working. So this is the first question of the read aloud. You have 35 seconds for preparation time. Augustus was given the powers of an absolute monarch, but he presented himself as the preserver of republican traditions. He treated the Senate or State Council with great respect and was made consul year after year. He successfully reduced the political power of the army by retiring many soldiers, but giving them land or money to keep their loyalty. Augustus was given the powers of an absolute monarch, but he presented himself as the preserver of republican traditions. He treated the Senate or State Council with great respect and was made consul year after year. He successfully reduced the political power of the army by retiring many soldiers but giving them land or money to keep their loyalty. Second question. Blue is the most popular color. Food researchers disagree. When humans searched for food, they learned to avoid toxic or spoiled objects, which were often blue, black, or purple. When food dyed blue is served to study subjects, they lose appetite. Blue is the most popular color. Food researchers disagree. When humans searched for food, they learned to avoid toxic or spoiled objects, which were often blue, black, or purple. When food dyed blue is served to study subjects, they lose appetite. Australians do speak English, however, for some tourists and travelers, it can be difficult to understand the slang. Also, the links between Australian and American English were seen to be very tenuous. At least some colloquialisms in Australian English do not exist in other types of English. So, during preparation time, read the lines as you are going to speak in the final. So, 40 seconds is the response time and 35 seconds is the preparation time. Australians do speak English, however, for some tourists and travelers, it can be difficult to understand the slang. Also, the links between Australian and American English were seen to be very tenuous. At least some colloquialism in Australian English do not exist in other types of English. Fourth question. Companies will want to be known not just for the financial results they generate, but equally for the imprint they leave on society as a whole. First, ensuring that their products contribute positively. Second, operating in a way that approaches a net neutral impact to the natural environment. And third, cherishing their people. So you will get 6 to 7 questions in the final exam of read aloud. Companies will want to be known not just for the financial results they generate, but equally for the imprint they leave on society as a whole. First, ensuring that their products contribute positively. Second, operating in a way that approaches a net neutral impact to the natural environment. And third, cherishing their people.
Fifth question. A unique characteristic of online shopping environments is that they allow vendors to create retail interfaces with highly interactive features. One desirable form of interactivity from a consumer perspective is the implementation of sophisticated tools to assist shoppers in their purchase decisions by customizing the electronic shopping environment to their individual preferences. Content of the read aloud will contribute in the reading section and pronunciation and fluency marks will contribute in speaking section. Unique characteristic of online shopping environments is that they allow vendors to create retail interfaces with highly interactive features. One desirable form of interactivity from a consumer perspective is the implementation of sophisticated tools to assist shoppers in their purchase decision by customizing the electronic shopping environment to their individual preferences. Imagine living all your life as the only family on your street. Then one morning you open the front door and discover houses all around you. You see neighbors tending their gardens and children walking to school. Where did all the people come from? What if the answer turned out to be that they had always been there? You just hadn't seen them. Imagine living all your life as the only family on your street. Then one morning you open the front door and discover houses all around you. You see neighbors tending their gardens and children walking to school. Where did all the people come from? What if the answer turned out to be that they had always been there? You just hadn't seen them. Before the discovery of Australia, people in the old world were convinced that all swans were white, an unassailable belief as it seemed completely confirmed by empirical evidence. The sighting of the first black swan might have been an interesting surprise for a few scientists, but that is not where the significance of the story lies. Before the discovery of Australia, people in the old world were convinced that all swans were white, an unassailable belief as it seemed completely confirmed by empirical evidence. The sighting of the first black swan might have been an interesting surprise for a few scientists, but that is not where the significance of the story lies. So this is the second question, but this is the question from the writing section, summarize written text, but it is contributing in the reading section. So let's start. So you can start from the first line, but I am starting this from second line, clients. I am starting from here. Clients who frequented were primarily from aristocratic or gentry classes. So I am starting this line from although, then give a comma, and here clients with small c. So this is the second line, but I am considering it as a first line. So after completing first line, give a semicolon, then space, then but, comma. So again I am taking this line. We can also
we can also confidently assume that untitled female customers were of gentry income because their addresses were primarily in London's। सो यहाँ पे जो लंदन है उसका जो एल होगा वो कैपिटल आएगा बिकॉज एक ये सिटी का नाम है। लंदन्स फैशनेबल वेस्ट एंड semicolon, connector here is hence, then give a comma, now here total words are 38. So now I am taking this line, not only reveal a dramatic increase in the proportion of female purchasers of novels by comparison of earlier studies of provincial women. So now total words are 62. Word limit is 50 to 70 words, but if you are writing 49 words, in case आपके 49 होते हैं या 71 हो जाते हैं तो आपका जो क्वेश्चन है वो चेक नहीं होता। सो आपकी जो वर्ड लिमिट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। समराइज रिटन टेक्स्ट में यू हैव टू राइट विद इन दी वर्ड लिमिट, मीन्स आपको 50 लिखने हैं। यू कैन ऑल्सो राइट 50 55 तक, और या फिर आप 69 लिख सकते हो, 70 लिख सकते हो, बट आप 71 नहीं लिखोगे। अगर आप 71 या 49 लिखते हो तो आपका जो क्वेश्चन है वो मार्क ही नहीं होगा। सो इस क्वेश्चन में आपकी प्रूफ रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि लिखने के बाद वो रीडिंग नहीं करते। तो चेक योर स्पेलिंग्स कि जो भी आपने कॉपी करा है तो वो आपके जो स्पेलिंग्स हैं वो बिल्कुल ठीक है, और विद इन दी लाइन आपने कोई फुल स्टॉप नहीं यूज़ करना। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है समराइज रिटन टेक्स्ट में। सो हम एक बार स्पेलिंग्स चेक कर लेते हैं। Untitled female customers were of gentry income because their address were primarily in London's fashionable West End, and ledgers not only reveal a dramatic increase in the proportion of female purchasers of novels by comparison of earlier studies of provincial women. So click on the next button. Total words are 62, and this is the first question. Now, first question is, since the beginning of the financial crisis, there have been two principles for why so many banks made such disaster decisions. The first is structure regulation did not regulate. Institutions failed to this as they should. Rules and guidelines were either inadequate or ignored. The second explanation is that Wall Street was this and the trader and investor did not know enough.
सो इसमें जो बात हो रही है, अगर आप पैराग्राफ को फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्टेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन रीडिंग एंड राइटिंग फिलिंग द ब्लैंक्स, और उसके बाद आता है एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी एंड द बेसिक नॉलेज ऑफ ग्रामर इज़ इम्पॉर्टेंट, कहीं पे अगर कोई ग्रामर रूल फॉलो होता है। तो जैसे इस केस में है कि जब से फाइनेंशियल क्राइसिस स्टार्ट हुए हैं देयर हैव बीन टू प्रिंसिपल डैश, कि जो बैंक्स हैं उन्होंने इस तरह के डिसीजंस क्यों लिए। सो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस है एक्सप्लेनेशंस, डिबेट्स, एक्सक्यूजेस एंड एग्जांपल्स। तो एक्सक्यूज़ यहाँ पे कोई आंसर हमारे पास नहीं बनेगा अगर आप एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी की बात करो, बट इसका जो आंसर है वो आपके पास थर्ड लाइन में पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे उसने लिखा है कि फर्स्ट एक्सप्लेनेशन उसने ये दी है कि जो रेगुलेटर्स हैं डिड नॉट रेगुलेट, तो सेकेंड एक्सप्लेनेशन वो इस लाइन में दे रहा है। तो इट मीन्स क्या करेंगे, वो एक्सप्लेनेशन देंगे, कोई एक्सक्यूज़ या डिबेट नहीं हो रहा वहाँ पे। सो आपने ध्यान से जो अपना आंसर है वो चूज करना है। सो फर्स्ट आंसर हमारा रहेगा एक्सप्लेनेशन, बिकॉज यहाँ पे उसने सेकेंड एक्सप्लेनेशन दी हुई है। अब सेकेंड लाइन में उसने बोला रेगुलेटर्स डिड नॉट रेगुलेट, इंस्टीट्यूशंस फेल्ड टू एज दे शुड का मतलब होता है कि जो आपने करना है, मतलब ऐसा होना चाहिए। सो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस हैं, टू है, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, बट फाइनल में भी हमेशा अगर टू है तो फर्स्ट फॉर्म ही गिवन होती है। सो आपको अपना आंसर चूज करना है। तो यहाँ पे उसने लिखा है फंक्शन, यूज, स्टेबलाइज और मेंटेन। सो यहाँ पे लिखा है फेल्ड टू एज दे शुड, कि जो इंस्टीट्यूशंस है वो इस तरह से फेल हुए जैसे उन्होंने करना था। तो यूज़ और स्टेबलाइज दो जो ऑप्शंस है वो आप इजीली यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हो। तो आपके पास बनता है फंक्शन और मेंटेन, बट यहाँ पे उन्होंने बोला कि रूल और गाइडलाइंस जो थे वो शायद इनएडिक्वेट थे या फिर उनको इग्नोर करा गया। सो अगर वो उस तरह से फंक्शन करेंगे तभी वो उस चीज़ को इग्नोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा हमारे पास फंक्शन। अब नेक्स्ट है दी सेकेंड एक्सप्लेनेशन इज दैट वॉल स्ट्रीट वॉज। तो यहाँ पे भी हमारे पास वॉज है, तो वॉज के साथ हमारी जो वर्ब आएगी वो मोस्टली हम सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लेते हैं। तो यहाँ पे है रफ, रैम्पेंट, इनकॉम्पिटेंट या इररिस्पॉन्सिबल, बट आगे उन्होंने लिखा है कि दैट दी ट्रेडर्स, कॉन्ट्राडिक्ट करा सेंटेंस को कि ट्रेडर एंड इन्वेस्टर्स डिड नॉट नो एनफ, तो वो इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे, एंड दैट दे मेड एक्स्ट्रा वेगेंट बैट्स विदाउट डैश। सो इसमें हमारे पास है कि सेकेंड एक्सप्लेनेशन उन्होंने ये चीज़ दी, तो रफ हो गया या हमारे पास रैम्पेट हो गया, उसके बाद है इनकॉम्पिटेंट या इररिस्पॉन्सिबल। सो रफ का यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं बन रहा कि दी वॉल स्ट्रीट वॉज रफ एंड इन्वेस्टर्स। सो इनकॉम्पिटेंट कि उन्हें इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी, तो इसलिए उन्होंने इस तरह के डिसीजंस लिए। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आएगा इनकॉम्पिटेंट। उसके बाद है दैट दे मेड एक्स्ट्रा वेगेंट बैट्स, बैट्स मीन जो शर्तें लगाई, विदाउट डैश दी कॉन्सिक्वेंसेज, मीन्स उनको कॉन्सिक्वेंसेज का पता नहीं था, विदाउट लिखा हुआ है यहाँ पे, तो उन्होंने इस तरह के डिसीजंस लिए। तो यहाँ पे है काउंटिंग दी कॉन्सिक्वेंसेज, अंडरस्टैंडिंग, करेक्टिंग या वैल्यूइंग। सो कॉन्सिक्वेंसेज को आप काउंट नहीं करोगे, तो फर्स्ट जो एलिमिनेट है वो आपने ये चीज़ कर दी, आप कॉन्सिक्वेंसेज को करेक्ट नहीं कर सकते, तो ये दोनों तो ऑलमोस्ट एलिमिनेट होती हैं। तो हमारे पास बचता है अंडरस्टैंडिंग या वैल्यूइंग, तो कॉन्सिक्वेंसेज को आप वैल्यू भी नहीं करोगे, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग बनता है। सो आप अपने ऑप्शंस भी चेक कर सकते हो कि कौन कौन से ऑप्शंस आपने चूज़ करे हैं। नेक्स्ट है क्राइम प्रिवेंशन। सो क्राइम प्रिवेंशन हो गया कि क्राइम को रोकना, हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री इन ऑस्ट्रेलिया एंड इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। सो इसमें ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है और अदर पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड की भी बात हो रही है। सो इन ऑल सोसाइटी पीपल हैव ट्राइड टू, सो यहाँ पे हैव ट्राइड टू है, themselves and those close to them from assaults and other abuses. Every time someone locks the door to their house of their car, they practice dash प्रिवेंशन। सो यहाँ पे है कि क्राइम को किस तरह से रोकना है, सो वो इस चीज़ की ट्राई कर रहे हैं। सो पहली ऑप्शन है इन ऑल सोसाइटीज पीपल हैव ट्राइड टू डैश। सो अब उसमें प्रिवेंशन को रोकने की बात हुई है और अब्यूज़ेस को बंद करने की बात हुई है, असॉल्ट्स को बंद करने की बात हुई है। तो वो इस तरह से करके क्या कर रहे हैं अपने आप को, पीपल मीन्स लोग इस तरह से करके क्या करना चाह रहे हैं, प्रमोट, रिस्पेक्ट, प्रोटेक्ट या इन्हांस।
प्रमोट वो बढ़ावा नहीं देंगे, रिस्पेक्ट उस चीज़ की रिस्पेक्ट तो नहीं होगी, क्योंकि प्रिवेंशन को रोकने की बात हो रही है. सो अगर प्रिवेंशन को रोकने की बात हो रही है इट मीन्स वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए बात कर रहे हैं. तो इन्हांस हो गया कि बढ़ावा दे रहे हो या ज़्यादा कोई चीज़ हो रही है. तो यहाँ पे प्रिवेंशन वर्ड से ही आप लोगों को क्लियर है कि यहाँ पे क्या आएगा, प्रोटेक्ट. अब नेक्स्ट है एवरी टाइम. हमेशा क्या होता है कि समवन लॉक्स द डोर टू देयर हाउस, कि मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ लोग मतलब जो अपने घरों का दरवाज़ा है उसको बंद कर लेते हैं या फिर कार में बंद कर लेते हैं. दे प्रैक्टिस डैश प्रिवेंशन. तो इस तरह से वो क्या करते हैं, अ नंबर ऑफ प्रिवेंशन, अ फॉर्म ऑफ, रिलेशन टू एंड एडिशन टू. बट अगर वो अपने आप को घर में बंद कर रहे हैं या अपने आप को कार में बंद कर रहे हैं तो वो प्रिवेंशन किस चीज़ की कर रहे हैं, क्राइम को रोकने की बात हो रही है. तो यहाँ पे क्या आ गया, अ फॉर्म ऑफ प्रिवेंशन, क्योंकि नंबर वहाँ पे काउंटिंग की बात नहीं हुई, इसका कोई रिलेशन भी नहीं है और इन एडिशन की तो कहीं पे बात ही नहीं हो रही है. सो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ प्रिवेंशन, खुद को बचाने का. Now, most parents want their children to learn to be law abiding and not spend extended periods of their lives in prison. So, mostly parents ये नहीं चाहते कि जो उनके बच्चे हैं वो जेल में रहें. इन दिस कंट्री एट लीस्ट, इस कंट्री में एट लीस्ट मोस्ट. तो वो क्या कह रहा है कि ये चीज़ पेरेंट्स नहीं चाहते. तो ऐसा इस कंट्री में ऐसा क्या हुआ है, सक्सेस हैड सक्सीडेड, क्योंकि यहाँ पे जो सक्सेस वर्ड है वो सबका सेम है. तो सक्सेस, देन उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हैड सक्सीडेड, सक्सीड एंड सक्सीडेड. सो मोस्ट सक्सेस, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन दो वर्ड्स को कनेक्ट करने के लिए नहीं बन रहा. हैड सक्सीडेड में आप कंफ्यूज हो सकते हो, या सक्सीड आएगा या सक्सीडेड आएगा. तो यहाँ पे हैड सक्सीडेड मतलब पास्ट में हो चुके की बात हो रही है, सक्सीड मतलब आप कर चुके हो, तो सक्सीडेड मतलब हो चुका था. तो वो इस चीज़ में सक्सीड हुए हैं, ऐसा करने में वो सक्सेसफुल हुए हैं. तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा, सक्सीड, क्योंकि हुए हैं. नेक्स्ट है ओनली अ स्मॉल मिनॉरिटी ऑफ यंग पीपल बिकम in a functioning society, crime prevention is a part of everyday life. While prevention can be all pervasive at the grassroots, is already neglected in mass media and political discourses. तो उसने बोला है कि जो क्राइम को रोकने की बात है वो जो मीडिया की बात हो रही है या पॉलिटिकल की बात हो रही है तो वहाँ पे उसको निगलेक्ट करा गया है. तो यहाँ पे हमारे पास पहले उसने ये सेंटेंस लिया, उसके बाद इस सेंटेंस को वो कनेक्ट कर रहा है इसके साथ. विच इज़ नेग्लेक्टेड, इट इज़ व्हाट इज़ एज. अगर आप वट लेते हो तो वट के साथ या तो इफ़ होता या फिर वट का यहाँ पे कोई मीनिंग आता. तो वट का कोई मीनिंग नहीं आ रहा. एज अगर आप ले रहे हो तो एज अ हमेशा होता है, एज के बाद हमेशा अ होता है. तो बच्चे दोनों में कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि मोस्टली हम यहाँ पे विच या इट दोनों में लगा सकते हैं. तो अगर आप विच लगा रहे हो तो विच हमारे पास तब ऑप्शन आती है अगर यहाँ पे किसी पर्सन से रिलेटेड बात हुई हो, किसी थिंग से रिलेटेड बात हुई हो और किसी और चीज़ से रिलेटेड कोई बात हुई हो. तो बट यहाँ पे हमारे पास बात हो रही है मीडिया की और पॉलिटिकल डिस्कोर्सेस की, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आएगा इट इज़. क्योंकि अगर विच इज़ का मतलब अगर किसी पर्सन की बात हुई होती यहाँ पे या किसी और प्लांट की या किसी थिंग की बात हुई होती. अब नेक्स्ट है व्हेन पॉलिटिशियंस टॉक बैक रेडियो होस्ट एंड न्यूज़पेपर अबाउट क्राइम एंड डैश रेमेडीज. सो रेमेडी होता है कि किसी चीज़ को बचाने के लिए आप क्या यूज़ कर रहे हो, तो वो रेमेडी हो गया. डिफ़ॉल्ट रेमेडीज, पॉसिबल, आर्टिकुलेट एंड एब्सोलूट. सो उन्होंने बोला है कि वाइल जो जब पॉलिटिशियंस हैं जब वो बात करते हैं या मतलब उनकी जो रेडियो टॉक होती है या न्यूज़पेपर में कोई जो आपका कोई आर्टिकल आता है तो उसमें वो रेमेडीज़ देते हैं अबाउट क्राइम एंड रेमेडीज़. क्राइम के बारे में बताते हैं तो उसके बाद उसको रोकने के बारे में बताते हैं क्योंकि उन्होंने लिखा है देम टू मेंशन प्रिवेंशन. तो उसके बाद वो कौन सी रेमेडीज़ बताएंगे. डिफ़ॉल्ट नहीं आएगा मतलब कोई भी, तो वो ऑप्शन यहाँ पे नहीं बन रही है. पॉसिबल हो सकता है, आर्टिकुलेट और एब्सोलूट रेमेडीज़. एब्सोलूट मतलब सच में, तो वो ज़रूरी नहीं है कि जो वो बताएं वो सच है. तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आएगा पॉसिबल. Next question. Never has the carbon footprint of multinational corporation been under such intense
intercity train journeys and long haul flights to dash face to face business meetings contribute significantly to greenhouse gases and the resulting. So यहाँ पे हमारे पास बात हुई है फेस टू फेस बिजनेस मीटिंग से रिलेटेड कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली. तो उन्होंने बोला है कि इंटरसिटी ट्रेन जर्नी, शहर के बीच में जो ट्रेन जर्नीज़ हैं और जो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम फ्लाइट्स यूज़ कर रहे हैं, तो फेस टू फेस बिजनेस मीटिंग्स क्रिएट करता है, कंडक्ट, प्रोड्यूस या जनरेट. बट अगर फेस टू फेस मीटिंग हो रही है तो आपको हमेशा पता है कि वो क्या होगी, कंडक्ट होगी. क्रिएट मतलब कि आप उसको क्रिएट नहीं कर रहे हो, जस्ट उसको क्या कर रहे हो, कंडक्ट कर रहे हो. तो जो फर्स्ट ऑप्शन आएगी उसमें हमारे पास आएगा कंडक्ट. अब नेक्स्ट है, अब उसने बोला है कि मीटिंग कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली, तो वो कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सिग्निफिकेंटली टू ग्रीन हाउस गैसेज एंड द रिजल्टिंग, जो ग्रीन हाउस का रिजल्टिंग क्या होगा ऑन द इन्वायरमेंट. सो यहाँ पे है रिजल्टिंग गैसेस, तो गैसेस ऑलरेडी वर्ड यहाँ पे आ चुका है, तो ये यहाँ पे नहीं आएगा. अब स्ट्रेन हो सकता है बट इफ़ेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि हम रिजल्टिंग इफ़ेक्ट ही लगाते हैं. उसके बाद स्टीम तो नहीं आएगा, क्योंकि स्टीम मीन्स भाप की कोई बात नहीं हुई है. तो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूजन होते हैं कि स्ट्रेन आएगा या इफ़ेक्ट आएगा. अगर आप बिना समझे कर रहे हो तो आप हमेशा यहाँ पे इफ़ेक्ट ही लिखते हो. बट अगर आप उसके बाद देखो तो यहाँ पे उसने लिखा है This has introduced new video conferencing technology and carbon neutral company, enabling corporate output to become more environmentally responsible. The innovation allows simulated face-to-face meeting to be held across continents or environmental burden of international travel. So यहाँ पे environmental burden of international travel की बात हो रही है. तो अगर हम इस burden word से related करते हैं तो उससे related हमारा कौन सा word आता है, strain. तो इसलिए यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो स्ट्रेन आएगा मेरे अकॉर्डिंग. अब नेक्स्ट है मीटिंग्स टू बी हेल्ड अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स विदाउट द टाइम, तो विदाउट टाइम मैनेजमेंट हो सकता था, बट यहाँ पे ऑप्शन है प्रेशर, लिमिट, स्ट्रेस एंड प्रेस. तो प्रेस हमारे पास कोई ऑप्शन बनता ही नहीं है, ना स्ट्रेस बनता है, क्योंकि स्ट्रेस के साथ कोई और कॉलोकेशन आएगी. तो यहाँ पे टाइम लिमिट और प्रेशर दोनों चीज़ें हो सकती हैं. तो मोस्टली बच्चे यहाँ पे टाइम लिमिट ही लगाते हैं. बट यहाँ पे उसने लिखा है कि फेस टू फेस मीटिंग आप कहीं पे भी किसी भी कॉन्टिनेंट में कंडक्ट कर सकते हो. और इन्वायरमेंटल बर्डन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेवल. सो प्रीवियस डिज़ाइन हैव एनेबल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. तो यहाँ पे हमारे पास टाइम प्रेशर की कोई बात नहीं है, क्योंकि इनोवेशन ने ये अलाउ करा है कि सिमुलेटेड फेस टू फेस मीटिंग्स हैं. तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आएगा प्रेशर. नेक्स्ट है हाउ एवर कैन ब्रिंग पीपल टुगेदर फ्रॉम अप टू 5 लोकेशंस. सो अब उसने बोला है कि ये जो लोग हैं वो इकट्ठे हो सकते हैं 5 लोकेशंस एनीवेयर इन दी वर्ल्ड. सो अगर एनीवेयर इन दी वर्ल्ड है तो मतलब वर्ल्ड में कहीं भी हो सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन बनता है सेपरेट, क्योंकि ईच सिंगल या रिस्पेक्टिवली का कोई चांस नहीं है. विद ट्रांसमिशन क्वालिटी, तो उनकी जो ट्रांसमिशन क्वालिटी है वो कैसी होनी चाहिए, अनरीजनेबल, अनरियलिस्टिक, अनरिलायबल या अनराइवल्ड. तो यहाँ पे हमारे पास अनरीजनेबल कोई ऑप्शन नहीं है, अनरियलिस्टिक नहीं है, क्योंकि अगर ये चीज़ हो रही है तो इट मीन्स वो रियलिस्टिक है. तो यहाँ पे अनरिलायबल. सो सारे वर्ड्स अन ही हैं, बट इनके अन का जो मीनिंग है वो कुछ डिफरेंट निकल रहा है. अनरीजनेबल कोई मीनिंग नहीं है, अनरियलिस्टिक मीन्स रियलिस्टिक नहीं है, अनरिलायबल मीन्स अनरिलायबल नहीं है. बट अनराइवल्ड का यहाँ पे मीनिंग होता है कि जो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बेजोड़ ट्रांसमिशन क्वालिटी है. तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो अनराइवल्ड आता है. नेक्स्ट, from 2 million ago when this salt was pushed up through the much harder material surrounding it, and the mountain is one of the largest domes of its kind in the world and unique in Europe, while small amounts of other minerals pervade this hill. The salt pile a near translucent quality of not the thin layer of reddish clay coating the exterior. So ये blank सबसे डिफ़िकल्ट लगती है स्टूडेंट्स को. वुड हैव हैड, हैज़ एंड हैज़ हैड. सो ये आती भी है.
फाइनल में भी इस तरह की एक या दो ऑप्शंस ऐसी आ सकती हैं जहाँ पे ये ऑप्शंस हों। मोस्टली हमारे पास बीन भी होता है। सो मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी, छोटी सी क्लिप थी कि आप हैव हैड और हैज़ सबको पता है कि कहाँ पे यूज़ करोगे, या हैज़ हैड। सो इन दोनों का रिलेशन है कि अगर आपकी जो फ्यूचर प्रेजेंट में कोई बात हुई है बट वो काम जो रिलेटेड है वो पास्ट से रिलेटेड है, तो वहाँ पे हम हैव हैड या हैज़ हैड यूज़ करते हैं। तो हैज़ अगर हम यूज़ कर रहे हैं इट मीन्स वो चीज़ हो चुकी है। बट यहाँ पे उसने बोला दी सॉल्ट पाइल अ नियर दिस क्वालिटी इफ़ नॉट फॉर द थिन लेयर ऑफ रेडिश क्ले कोटिंग द एक्सटीरियर। मतलब ऐसा हो सकता है, तो अगर हो सकता है तो उसके लिए हम हमेशा यूज़ करते हैं वुड हैव। अगर ऐसा ही है तो हम यूज़ करते हैं शुड हैव। नेक्स्ट है द डैश ऑफ द माउंटेन वॉज रिकोगनाइज्ड एज अर्ली एज द मिडल एजेस व्हेन रोमन्स बिगेन एक्सप्लॉइटिंग द माउंटेन फॉर इट्स सॉल्ट विच बिगेन टू वॉल्स्टर द यंग कार्डियन। सो उस पर यहाँ पे बोला है द सिग्निफिकेंस है, तो सबका जो मीनिंग है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंटली, सिग्निफाई, मतलब उस चीज़ का जो एक्चुअल सिग्निफिकेंस है, एक्चुअल जो मीनिंग है वो क्या है। बट हमने देखना है कि इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या ऑप्शन आएगी। तो सिग्निफिकेंट ऑफ द माउंटेन, सिग्निफिकेंस ऑफ द माउंटेन करेक्ट कॉलोकेशन बन रही है। सिग्निफिकेंटली हम यूज़ करते अगर उसका यहाँ पे कुछ इफ़ेक्ट दिखता, या सिग्निफाई मतलब वो ये चीज़ बता रही है। तो यहाँ पे जो करेक्ट बनता है हमारे पास वो क्या बनता है, सिग्निफिकेंस। सो ये एक कॉलोकेशन है, आपने सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखना है कौन सी कहाँ पे यूज़ होगी। नाउ विच बिगेन टू बॉस्टर द यंग कार्डियन डैश। सो कॉरस्पॉन्डेंस, इकोनॉमी, अकॉर्डेंस, इकोनॉमिस्ट। सो यहाँ पे बात हुई विद द इन्वेंशन ऑफ इंडस्ट्रियल माइनिंग टेक्निक्स। तो मीन्स अगर माइनिंग टेक्निक्स की बात हो रही है, माइंस की बात हो रही है, तो मीन्स जो चीज़ रिलेटेड है वो इकोनॉमी से रिलेटेड है। बट इकोनॉमी के लिए हमारे पास दो वर्ड पड़े हैं, इकोनॉमी या इकोनॉमिस्ट। सो यहाँ पे है टू बॉस्टर द यंग दिस, तो उसके अकॉर्डिंग जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो हमारे पास इकोनॉमी बनेगा। Now in dash to the mineral export, the locals of this began making salt sculptures to sell and invented a number of hard in। अब ये चीज़ उन्होंने पहले करी कि ऐसा हो रहा है, फिर उसके बाद वो ये चीज़ कर रहे हैं। तो मोस्टली हम यहाँ पे जो कनेक्टर्स यूज़ करते हैं, इन रेशो, इन एडिशन, इन इंटरेस्ट, इन अडेप्शन। तो पहले उन्होंने ये करा, उसके साथ वो ये चीज़ भी कर रहे हैं, तो मीन्स दो चीज़ें हो रही हैं। तो क्या हो गया, इन एडिशन, ये हमारा कनेक्टर हो गया। सो वुड हैव, सिग्निफिकेंस, इकोनॉमी एंड एडिशन। आप अपने आंसर्स भी चेक कर सकते हो। नेक्स्ट है डीएनए। डीएनए की बात हो रही है। डीएनए इज अ मॉलिक्यूल दैट डज टू थिंग्स, जो दो चीज़ें करता है। फर्स्ट इट एक्ट एज द डैश मटेरियल विच इज़ पास्ड डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। सो डीएनए से रिलेटेड पैराग्राफ है, तो उसमें उसने बोला कि मोस्टली ये दो चीज़ें ही करता है। फर्स्ट उसने बोला है पास्ड डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। सो अगर वो जनरेशन टू जनरेशन पास कर रहा है, सो इट अंडरस्टूड। अगर आपको मीनिंग्स, अगर आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग है तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर जनरेशन टू जनरेशन पास हो रहा है, हेरिडिटरी। आपको बाकी ऑप्शंस पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट है फर्स्ट, सेकंड। फर्स्ट उसने ये बता दिया। सेकंड उसने बोला इट डायरेक्ट टू कंसिडरेबल एक्सटेंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ आवर बॉडीज टेलिंग अवर सेल्स व्हाट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स टू मेक। मतलब पहले वो कह रहा है कि वो डायरेक्ट करता है, डायरेक्शंस देता है कंस्ट्रक्शन ऑफ आवर बॉडीज़। उसके बाद हमारे सेल्स को बताता है व्हाट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स टू मेक, किस तरह के मॉलिक्यूल्स बनाने हैं। एंड अवर डेवलपमेंट फ्रॉम अ सिंगल सेल टू अ फुली फॉर्म्ड एडल्ट, एस्टैब्लिश, गाइडिंग, पुशिंग या डिटर्मिनिंग। सो यहाँ पे अगर उसने पहले हमें डायरेक्ट करा है, तो डायरेक्ट के बाद वो क्या करेगा, हमें गाइड करेगा। ना तो पुश कर सकता है, ना डिटर्मिन कर सकता है, ना इस्टेब्लिश कर सकता है। तो डायरेक्ट के अकॉर्डिंग सेकेंड ऑप्शन बनती है गाइडिंग। दीज टू थिंग्स आर ऑफ कोर्स। अब ये कह रहा है कि वो दोनों जो चीज़ें हैं वो क्या हैं, सप्लांटेड, कनेक्टेड, पैरेलल या रिक्वायर्ड। तो एक चीज़ पहले उसने डायरेक्ट करा, फिर गाइड करा, इट मीन्स दोनों क्या है हमारे पास, कनेक्टेड हैं। सो दिस इज द ईजिएस्ट ब्लैंक। Now, next generation, because well constructed bodies are more likely to survive and dash to reproduce.
मतलब जो ऐसी बॉडीज होती हैं वेल कंस्ट्रक्टेड, मोर लाइकली टू सर्वाइव एंड डैश टू रिप्रोड्यूस। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है दस, येट, नेमली, नेवरदिलेस। सो 10 मतलब इस तरह से वो रिप्रोड्यूस हो सकती हैं, येट मतलब अभी, नेमली तो करेक्ट ऑप्शन बन ही नहीं रहा, और नेवरदिलेस मतलब फिर भी का कोई ऑप्शन नहीं है कि फिर भी वो रिप्रोड्यूस करेंगी। तो उसने बोला कि वो सर्वाइव करेंगी, फिर उसके बाद वो क्या करेंगी, इस तरह वो रिप्रोड्यूस करेंगी। तो ये उसने थ्योरी दी हुई है, नेचुरल सिलेक्शन स्टेटेड इन द लैंग्वेज ऑफ डीएनए। सो करेक्ट ऑप्शन हियर इज 10। So this is the multiple choice questions. So this is the question, और आपको यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन चूज़ करने हैं, बट इस क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग है। सो जहाँ पे आप श्योर हो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे जो मार्क्स हैं वो 1-2 पॉइंट से हम पीछे रह जाते हैं, तो इसको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपको 1-2 ऑप्शंस ईजिली मिल रहे हैं तो आप उसको टिक करो जिसमें आप श्योर हो। सो अगर आप 2 टिक कर रहे हो, एक सही है एक गलत है, तो आपको 0 नंबर मिलेंगे। सो डू केयरफुली। According to the text, how does modern furniture design differ from that of the past? So कई बार हमारे पास क्वेश्चन का आंसर हमें पता होता है, हमें पैराग्राफ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। इसमें हमारे पास लिखा है practically and economy are the most important consideration. Designer are only employed by the wealthy. Designer are primarily concerned with the aesthetic appeal. Modern furniture should need little looking after. Making the best use of available space is important. Furniture should be as decorative as possible. सो फर्स्ट उसने बोला इकोनॉमी आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो ये चीज़ हो सकती है। सो एक तो मैं ये ऑप्शन लगा रही हूँ। उसके बाद है डिज़ाइनर आर ओनली, तो ये कोई प्लस पॉइंट नहीं है। डिज़ाइनर आर प्राइमरी कंसर्न, तो प्राइमरी बता दिया और यहाँ पे ओनली बता दिया, तो इट मीन्स ये तो नेगेटिव ही जा रहा है। सो उसने बोला है मॉडर्न फर्नीचर शुड नीड लिटल लुकिंग आफ्टर। सो आई डोंट थिंक कि ये हो सकता है। सो मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे इस क्वेश्चन से पता लग रहा है, विदाउट वेस्टिंग ऑफ माई टाइम, क्योंकि रीडिंग में इतना टाइम नहीं होता कि मैं पूरा पैरा पढूं, पैरा भी बहुत लंबा है, तो मैं यहाँ ए और ई ऑप्शन को टिक कर रही हूँ सिर्फ। सेकेंड क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट विच ऑफ द कंट्री लिस्टेड बिलो ड्राइव ऑन द लेफ्ट। सो अगर हम पैराग्राफ की यहाँ पे बात करें तो हमारे पास है ड्राइव ऑन द लेफ्ट। सो सेकेंड लाइन ही हमारे पास लिखी हुई है। About 5% of the world country apart from the UK itself, mostly country that were British colonies. So यहाँ पे हमारे पास है इंडिया, इंडिया ऑप्शन में नहीं है। साउथ अफ्रीका, सिंगापुर नहीं है, देन साउथ अफ्रीका, सिंगापुर, जैमिका नहीं है, जापान है, उसके बाद है 2 तो है हमारे पास अभी तक, एंड दिस वन इज ऑल्सो हेयर। सो ज़्यादा नहीं पढ़ते, यहाँ पे 3 हमें पता चल रही हैं, आप यहाँ से देख सकते हो। साउथ अफ्रीका, एंड दिस इज जापान, एंड दिस। सो हम 3 ही टिक करते हैं। एंड दिस इज़ रीऑर्डर पैराग्राफ। जैसे कि रीऑर्डर पैराग्राफ में मैंने आपको बताया था कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सो आपने हमेशा ट्राई करना है कि आप 1 या 2 पेयर तो बना ही दो, क्योंकि जितनी पेयरिंग आपकी करेक्ट होगी उतने मार्क्स मिलेंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने 5 का सीक्वेंस सेम लगाना है। जो 2 सीक्वेंस आपको समझ आ रहे हैं आपने वो सीक्वेंस लगाने हैं। तो फर्स्ट जो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है वो डिस्पाइट दिस हो रहा है। सो ये दिस कहीं और पे पड़ा हुआ है, सो पहले हम इसको नहीं पढ़ते। सब उसके बाद है हिज पेरेंटल ग्रैंडफादर वॉज दिस, अ फेमस साइंटिस्ट हु केम अप विद हिज होन। सो ये हिज भी कहीं पे है। तो सबसे पहले है चार्ल्स डार्विन वॉज बॉर्न इन दिस, येट डार्विन। तो यहाँ पे जो बात हुई है वो डार्विन की बात हुई है, तो हम इसको पहले फर्स्ट नंबर पे लेके जा रहे हैं। तो दिस वॉज बॉर्न ऑन 12 फरवरी दिस इनटू अ रिच एंड पावरफुल फैमिली। तो अगर हम उसके बर्थ की बात हुई है तो उसके बाद उसने उसकी फैमिली की बात करी है। तो अगर फैमिली की बात करें तो वो थर्ड सेंटेंस में उसके ग्रैंडफादर की बात हो रही है। तो उसके बाद यहाँ पे उसके स्किल्स की बात हुई है, और उसके बाद है प्रोवाइडिंग विद द वेल्थ ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचुरल वर्ल्ड दैट एस्टैब्लिश हिम वन ऑफ द दिस। सो इसके बाद हम ये वाला ऑप्शन लगाते हैं 3-2। अब यहाँ पे उसने बोला है हिज ऑन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन वाइल हिज
maternal grandfather was this of pottery fame. Despite this, for the first decade of his life, failed to distinguish himself from dropping out of medical studies because he hated the sight of blood and entering Cambridge to study of this. तो ये उसके ग्रैंडफादर की बात थी. उसके बाद इसके अलावा डार्विन को ये चीज़ पसंद थी. Yet Darwin gaining great skill as this naturalist, opportunity, unpaid position scientist on this corner of the globe. सो मैं बाकी सीक्वेंस चेंज नहीं कर रही क्योंकि फर्स्ट में उसके बर्थ की बात हुई, देन फैमिली की बात हुई. तो फैमिली में उसके ग्रैंडफादर की बात हुई तो हमने उसको कनेक्ट कर दिया. तो थर्ड में बात हो रही है कि इसके अलावा ये चीज़ थी बट फिर भी डार्विन ने ये करा. तो मेरे अकॉर्डिंग जो सीक्वेंस बनना है वो बनना है 3 2 1 4 5. मैंने 4 5 को चेंज नहीं करा, सिर्फ 3 और 2 को इंटरचेंज करा है. बाकी सीक्वेंस मैं सेम रख रही हूँ. लेट्स चेक इन द लास्ट. दिस इज़ द ईजीएस्ट. ये मैंने पहले भी इस पर एक छोटी सी क्लिप बनाई थी. मैनी ऑफ अस हैप्पीली ड्राइव अ कार विदाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट गोज ऑन दी अंडर द बोनेट. सो दिस इस लाइन का मीनिंग आई थिंक आपको क्लियर है कि हम ड्राइव करते हैं बट हम हैप्पीली ड्राइव करते हैं बट हमें ये नहीं पता होता कि क्या प्रोसीजर है. नेक्स्ट है, आफ्टर ऑल सम एक्सपर्ट्स से कोडिंग इज वन ऑफ द ह्यूमन स्किल दैट विल बिकम ऑब्सलीट एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो इट इज़ नेसेसरी फॉर चिल्ड्रन टू लर्न हाउ टू प्रोग्राम कंप्यूटर्स. नेवरदलेस गवर्नमेंट बिलीव कोडिंग इज एन एसेंशियल स्किल. सो अब इसमें है मैनी ऑफ अस. तो ये सेंटेंस आफ्टर ऑल है, सो है, नेवरदलेस है. सो आफ्टर ऑल तो इट मीन्स आफ्टर ऑल जो यहाँ पे उसने कनेक्टर यूज़ करा तो इससे पहले इसके कुछ रीजंस होंगे तो जो पहले डिस्कस हुए हैं. तो हम पहले जो इंडिपेंडेंट सेंटेंस है वो यही वाला है कि मैनी ऑफ अस दिस एंड विदाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट गोज ऑन अंडर दी बोनेट. सो क्या ये नेसेसरी है बच्चों के लिए कि हाउ टू प्रोग्राम कंप्यूटर्स. सो फर्स्ट 3. तो उसके बाद उसने बोला आफ्टर ऑल सम एक्सपर्ट्स से. और क्यों नेसेसरी है, क्योंकि कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जो कोडिंग है वो एक ह्यूमन स्किल है दैट विल बिकम ऑब्सोलीट एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रो. कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रो करती है तो जो ये स्किल है वो ख़त्म हो सकती है. सो नेवरदलेस गवर्नमेंट बिलीव कोडिंग इज़ एन एसेंशियल स्किल. सो मैंने यहाँ पे भी सिर्फ फर्स्ट को ही चेंज करा है और 3 को चेंज करा है. तो सीक्वेंस बन रहा है 1 3 2 4. नेक्स्ट इज रीडिंग फिलिंग द ब्लैंक्स. सो रीडिंग फिलिंग द ब्लैंक्स में बच्चों को जो प्रॉब्लम, मेरे स्टूडेंट्स को जो मोस्टली प्रॉब्लम आती है तो वो ये प्रॉब्लम है कि वो फर्स्ट ऑप्शन गलत चूज़ करते हैं. तो अगर आप रीडिंग फिलिंग द ब्लैंक्स में फर्स्ट ऑप्शन ही गलत चूज़ करते हो तो आपकी बाकी ऑप्शन 50 to 70% गलत हो सकती हैं. क्योंकि अगर आपने पहले ऑप्शन यहाँ पे फिल कर दी तो बाकी ऑप्शन गलत फिल हो सकती हैं. सो आपने पहले वो ऑप्शंस फिल करनी है जिसमें आप श्योर हो. So let's start. The electrons that orbit closest to the nucleus are strongly. So जिन्होंने साइंस पढ़ी हुई है they can easily solve it. They are called bound electrons. So यहाँ पे ऑप्शन है ऑर्बिट, सस्टेन, फोर्स, अट्रैक्टेड, डिस्क्लोज्ड एंड एंगल्स. तो यहाँ पे उसने बात करी है दे आर कॉल्ड बाउंड इलेक्ट्रॉन्स. बाउंड मतलब वो चीज़ बंधे हुए हैं. सो वो बंधे हुए तब होंगे अगर वो स्ट्रांगली क्या होंगे, अट्रैक्टेड होंगे. The electrons that are farther away from the pull of nucleus can be dash. तो यहाँ पे उसने बोला है कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से काफ़ी दूर हैं, आउट ऑफ देयर, दीज आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स. सो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव फ्रॉम वन एटम टू अनदर. तो जो तो अट्रैक्टेड हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन्स हैं बट जो लूज हैं तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं. तो वो पुल ऑफ न्यूक्लियस क्या होंगे, फोर्स्ड, उनको फोर्स करेगा क्योंकि वो लूज हैं आउट ऑफ देयर ऑर्बिट्स. सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हो. बाउंड से आपको पता चलेगा कि वो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है. पुल ऑफ न्यूक्लियस से आपको पता चलेगा क्योंकि यहाँ पे उसने लिखा है फार्दर अवे फ्रॉम द पुल. तो फोर्स करेगा वो उसको आउट ऑफ देयर ऑर्बिट, ऑर्बिट से बाहर आने के लिए. सो आप अपने ऑप्शंस भी चेक कर सकते हो. Now the allure of this book has always been negative and
सो इट इज़ क्लियर। अगर ऑलवेज बी नेगेटिव है तो उसका एंड क्या होगा, क्योंकि और नहीं है यहाँ पे, एंड है, तो एंड नेगेटिव एंड क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव। सो अगर आपका 60 है, 65 है, तो एटलीस्ट अगर 4 ऑप्शंस है तो आपकी 3 करेक्ट होनी चाहिए। सो ऑलवेज ट्राई टू मेक 3 ऑप्शंस करेक्ट। सो नेक्स्ट है, फॉर द टेक्स्ट एंड पिक्चर्स बिटवीन द कवर्स हेल्प मैनी यंग रीडर्स टू। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, देन यहाँ पे भी 2 है। सो सभी ऑप्शन में 2 के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, बट यहाँ पे भी जो ऑप्शंस हैं वो फर्स्ट फॉर्म ही है। सो आप अपने आंसर्स को ईजिली कैसे चूज कर सकते हो, सो लेट्स डू इट नाउ। फॉर द टेक्स्ट एंड पिक्चर्स बिटवीन द कवर्स हैव हेल्प मैनी यंग रीडर्स टू। तो वो कह रहा है कि जो पिक्चर्स होती हैं कवर्स के बीच में, जो टेक्स्ट लिखा होता है, तो वो यंग रीडर्स को क्या करती हैं। पहले तो उसने 2 के बाद स्पेस दे दिया, फिर उसने बोला ग्रास्प द वर्ल्ड अराउंड देम इन अ प्लेजरेबल एंड मीनिंगफुल वे। मीन्स वो मीनिंगफुल वे के साथ वर्ल्ड को देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे पिक्चर्स की बात हो रही है और टेक्स्ट की बात हो रही है। तो यहाँ पे उसने बोला ग्रास्प द वर्ल्ड अराउंड, तो वो ग्रास्प तभी करेंगे अगर वो यहाँ पे पहले डिस्कवर करेंगे। नेक्स्ट है, बट दिस हैज ऑल्सो इनेबल्ड ऑथर्स and publishers to dash upon young readers this position and desires to dash them a menu that turns out to be junk food। so यहाँ पे मेन्यू की बात हो रही है और जंक फूड की बात हो रही है, बट आप बोलोगे कि ये पहला तो हमारा बुक्स से रिलेटेड था, टेक्स्ट और पिक्चर से रिलेटेड था, तो ये चीज़ किस वे में हम वो कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है प्रे, बेनिफिशियल, सेल, इन्वेंट, शो, प्रेजेंट, रीड, फाइंड एंड प्रे। सो यहाँ पे उसने लिखा है but the other has also enabled authors and publishers to dash upon young reader dispositions and desires to dash them a menu that turn out to be a junk food। तो वो इस तरह का मेन्यू क्या करेंगे जो जंक फूड में कन्वर्ट हो सकता है, टर्न आउट टू बी जंक फूड। तो यहाँ पे वो इन्वेंट तो करेंगे नहीं मेन्यू को, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, सेल देम अ मेन्यू। सो ये 3 ऑप्शन आप इजीली सेलेक्ट कर सकते हो। नेगेटिव का पॉजिटिव आ गया, ग्रास्प द वर्ल्ड से डिस्कवर आ गया, देम अ मेन्यू देन टर्न टू बी जंक फूड से हमारा सेल आ गया। सो बची हमारे पास ये ब्लैंक। सो यहाँ पे हमारे पास हमने देखना है कि करेक्ट ऑप्शन क्या आ सकती है। तो यहाँ पे उसने बोला है कि जो ऑथर्स हैं या जो पब्लिशर्स हैं वो यंग रीडर्स अपॉन यंग रीडर डिस्पोजिशंस हैं और डिज़ायर्स हैं। तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग करेक्ट ऑप्शन मेरे पास, मेरे अकॉर्डिंग, प्रे बनता है कि वो उन लोगों को इफेक्ट कर सकता है। Now next है, Chaucer's tales quickly dashed to England in the early 15th century. Scholars feel the contemporary tales their instant and continued success because of their accurate and oftentimes portrayal of human nature unchanged। तो यहाँ पे पोर्ट्रेल्स की बात हो रही है। पोर्ट्रेल मतलब जो पोर्ट्रेट्स होते हैं, जो आपके घरों में पिक्चर्स होती हैं, या फिर जो आप कह सकते हो कि जो पोर्ट्रेट्स सेलिब्रिटीज़ के बने होते हैं, तो दैट इज़ द पोर्ट्रेट्स। सो इस वर्ड से आंसर यहाँ पे क्लियर है, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है कि अगर उसने पोर्ट्रेट्स की बात करी है तो उसके बाद चॉसर्स टेल्स की बात हो रही है, तो पोर्ट्रेट जो होगा वो डिफरेंट कलर्स का होगा, क्योंकि उसमें ब्राइट कलर्स हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन पड़ी हुई है विविड। अब नेक्स्ट है चॉसर्स टेल्स क्विकली। अब यहाँ पे वर्ड है थ्रू इंग्लैंड इन दी अर्ली 15th सेंचुरी। तो बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन होती है अराइव्ड या स्प्रेड। तो यहाँ पे अराइव्ड है मतलब उस टाइम पे वो पहुँचा, और स्प्रेड है कि वो उस टाइम पे फैल गया, बट यहाँ पे उसने लिखा है थ्रू इंग्लैंड इन दी अर्ली 15th सेंचुरी। तो इंग्लैंड में वो 15th सेंचुरी में क्या हुआ, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आएगी स्प्रेड। उसके बाद नेक्स्ट है, पहले वो इस तरह से 15th सेंचुरी में ऐसे हुआ, फिर स्कॉलर्स फील दिस टेल्स देयर इंस्टेंट, मतलब उस टाइम पे वो अपने इंस्टेंट पे था, एंड उसके बाद उसको कॉन्टिन्यू सक्सेस मिली ऑफ देयर एक्यूरेट एंड दिस पोर्ट्रेट्स। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, रीच करेगा, रीच देयर इंस्टेंट, एक पीक पॉइंट आएगा। तो उसके अकॉर्डिंग करेक्ट ऑप्शन है स्प्रेड, रीच एंड विविड। Next is cuteness in offspring is a dash protective mechanism that survival for otherwise completely infants।
previous research has linked cuteness to early ethological ideas of this, where infant facial features serve as innate releasing mechanism for caregiving behavior. So यहाँ पे बात हो रही है ऑफ क्यूटनेस इन ऑफस्प्रिंग. सो ऑफस्प्रिंग मीन्स औलाद, जो बच्चे होते हैं. डैश प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म. सो हमारे पास ऑप्शन है इनवैलिड, इंश्योर, डिपेंडेंट, इंस्टिंक्टिव. इंस्टिंक्टिव का मतलब होता है स्वाभाविक कि ऐसा हो सकता है. प्रॉपर, मेक, डेलिब्रेट. सो डेलिब्रेट का मतलब होता है जानबूझ के. ग्रंटेड, देन पोटेंट. पोटेंट का मतलब होता है ताकतवर. तब अब उसने यहाँ पे बोला है क्यूटनेस इन ऑफस्प्रिंग इज अ डैश मैकेनिज्म दैट सर्वाइवल फॉर अदरवाइज कंप्लीटली डैश इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म फॉर केयर गिविंग बिहेवियर्स. अब उसने यहाँ पे बोला है क्यूटनेस इज अ ऑफस्प्रिंग इज अ डैश प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, कि सबसे अच्छा प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है. तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो है, क्या बनता है, पोटेंट. तो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है तो वो क्या करेगा, सर्वाइवल फॉर अदरवाइज कंप्लीटली इन्फेंट्स. तो वो इस चीज़ को इंश्योर करेगा, दैट इंश्योर सर्वाइवल. फॉर अदरवाइज कंप्लीटली जो बच्चे क्या हैं, इन्फेंट्स डिपेंडेंट हैं. नाउ फॉर इंस्टिंक्टिव केयर गिविंग बिहेवियर्स. प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है तो मीन्स पोटेंट प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होगा. तो जो पोटेंट प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होगा वो इंश्योर करेगा सर्वाइवल के लिए, और बाकी जो बच्चे हैं वो डिपेंडेंट इन्फेंट्स हैं. और उसके बाद उसने बोला है कि जो इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म है वो एक अच्छा स्वाभाविक केयर गिविंग बिहेवियर है. Next है, for a start we need to change our dash of retirement and we need to change mindset arising from earlier government policy which in the face of high. For a start we need to change our dash of retirement. We need to change mindset arising from earlier government policy. फेस एम्प्लॉयमेंट लेवल्स. तो यहाँ पे उसने माइंडसेट की बात करी है. गवर्नमेंट पॉलिसी इन द फेस ऑफ हाई अनएम्प्लॉयमेंट लेवल अनकरेज मेच्योर वर्कर टू टेक अर्ली रिटायरमेंट. तो हमारा जो रिटायरमेंट का क्या होगा कॉन्सेप्ट, क्योंकि यहाँ पे उसने लिखा है माइंडसेट. तो माइंड्स में अगर कोई कॉन्सेप्ट है तो तभी कोई माइंडसेट बनेगा. In the face of high unemployment level, encourage mature workers to take early retirement. मतलब पहले जो पॉलिसी थी उसमें वर्कर्स को बोला जाता था कि वो अर्ली रिटायरमेंट ले सकते हैं, बट टुडे गवर्नमेंट अनकरेजेस. पहले वो उनको अर्ली रिटायरमेंट के लिए बोलती थी, तो अब उनको क्या अनकरेज करेगी, उनकी जो रिटायरमेंट्स है उनको डिले करने के लिए. तो अगर यहाँ पे डिले वर्ड है तो हमारे पास वही ऑप्शन आएगी. Next step, we now need to think of the retirement as a phased process where mature age workers dash reduce their hours, where they have considerable flexibility in how they combine their work and non-work time. So वो क्या करेंगे, क्योंकि उन्होंने बोला कि यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो अपना जो काम है वो कंबाइन कर सकते हैं. तो इट मीन्स उनके जो वर्किंग आवर्स होंगे वो क्या होंगे, ग्रेजुअली रिड्यूस हो सकते हैं. अब नेक्स्ट है, employers of choice remove the dash between the different segments of people life by creating flexible conditions of work. तो वो कह रहा है कि एम्प्लॉयर के पास चॉइस है कि वो डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ पीपल लाइफ है उसके लिए फ्लेक्सिबल कंडीशंस हो सकती हैं वर्क की, और रेंज ऑफ लीव्स भी हो सकती हैं. तो वो क्या होंगे, बैरियर्स. सो दैट नीड्स ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज कैन बी मेट. तो यहाँ पे जो उनकी नीड्स हैं, तो यहाँ पे दो वर्ड बैठे हैं हमारे पास, साइमल्टेनियसली एंड सडनली. बट वो नीड्स जो एम्प्लॉयर की हैं या जो एम्प्लॉयज़ की हैं वो दोनों इकट्ठी मिलनी चाहिए. तो यहाँ पे क्या हो गया, साइमल्टेनियसली. नेक्स्ट है, व्हाट प्रॉब्लम डज द आर्टिकल मेंशन इन रिलेशन टू सी स्नेल्स. रिसर्च इनटू सी स्नेल हैज़ बीन हार्मिंग द एनिमल्स carried by submarines to places where they harm other species.
सी स्नेल्स की बात हो रही है। तो बी ऑप्शन देखते हैं, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अगर करेक्ट है तो मार्क्स मिलेंगे, नहीं है तो नहीं मिलेंगे। Why is it difficult to establish the number of species globally? There are too many species to count them all. The number of species is constantly changing. This can be the correct option. क्योंकि different species की बात हो रही है, countily pairing, तो second option हो सकता है। So this is highlight correct summary. I'd like you to think for a moment about your hands and all the things you can do with them. You can use them to write or to drive. You can thread a needle, play the drums, build a wall, and so on and so forth. They can be careful and precise. Think of someone doing eye surgery, for example. But they can also generate huge forces. And here you might think of the sports person throwing a discus or lifting a heavy weight. How is it possible for our hands to be so incredibly flexible? Well, it's all down to the extraordinary complexity of the bones, ligaments, nerves, and muscles that lie beneath the skin of our hands. There are, for example, 9 muscles alone controlling just one thumb. Some of these are anchored to bones within the hand, while others link to the arm. Highlight incorrect words. This module has negative marking. When the European Economic Community was established in 1957, its aim was, in broad terms, to move towards closer political and economic cooperation. Today, the much larger European Union has a far-reaching influence on many aspects of our lives, from the conditions we work under to the safety standards we must adhere to and the environment in which we live. In order to achieve the free flow of goods and services, workers and capital between the member countries, they needed to establish mutual policies in areas as diverse as agriculture, transport and working conditions. When they had agreed on these policies, they became law. Now, though, the EU is concerned with a far wider range of issues. So these are the incorrect words. Second question. When societies were still mostly rural and agricultural, waste disposal was hardly an issue, partly because people tended to make use of everything, and partly because there was plenty of space to bury rubbish. It was when societies became predominantly urban and industrial that problems arose, mainly to do with health. City authorities had a hard time trying to find efficient ways of getting rid of all the rubbish. One of these was to get people to sort out their rubbish into different types, just as these days we are encouraged to separate our rubbish into different categories for easier removal and recycling. So, for example, kitchen rubbish was set aside and used for feeding animals. However, fears of disease put an end to that. In fact, it wasn't until the 20th century that all waste was simply thrown together and ploughed into landfills. When societies were still mostly rural and agricultural, waste disposal was hardly an issue, partly because people tended to make use of everything, and partly because there was plenty of space to bury rubbish. It was when societies became predominantly urban and industrial that problems arose, mainly to do with health. City authorities had a hard time trying to find efficient ways of getting rid of all the rubbish. One of these was to get people to sort out their rubbish into different types, just as these days we are encouraged to separate our rubbish into different categories for easier removal and recycling.
So, for example, kitchen rubbish was set aside and used for feeding animals. However, fears of disease put an end to that. In fact, it wasn't until the 20th century that all waste was simply thrown together and ploughed into landfills. This is going to surprise anybody who's ever been shaken awake by a quake in Southern California, but geologists say that the Los Angeles Basin is actually in a period of low seismic activity and has been for about the last 1,000 years. That's according to research published in the September issue of the journal Geology. The seismic lull is marked by relatively smaller and fewer earthquakes. That's compared with other periods with a lot of rumbling and crumbling. The period of big seismic activity in the LA Basin that ended 1,000 years ago lasted about 4,000 years. Long-term data on seismic activity indicate that the calm period lasts about 1,500 to 2,000 years, which gives LA another 500 to 1,000 years off. Now, the researchers are specifically referring to what's called the Urban Fault Network, which is under the LA metropolitan area. It does not include the San Andreas Fault, which can still throw the occasional big one around. About 10 major San Andreas biggies have happened during the current LA Basin lull. Nevertheless, if the current lull ends in the next millennium, LA's future could be very shaky. So it will take some time to compilation. So this is the score analysis. In reading it's 88. Overall हम इसमें कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा सिर्फ जस्ट अ सेक्शन टेस्ट ऑफ द रीडिंग सेक्शन. So 15 in listening, speaking 25, 29 in writing. तो हम स्कोर एनालिसिस अगर चेक करते हैं एंड दिस इज reading and writing filling the blanks, read aloud, reading filling the blanks, highlight incorrect words. I think एक नेगेटिव है या एक मिस हो गया. रीऑर्डर, समराइज रिटन टेक्स्ट. देन ये जो मॉड्यूल्स हैं ये हमारे इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये MCQ मल्टीपल आंसर्स है रीडिंग सेक्शन का, और हाईलाइट करेक्ट समरी एंड MCQ सिंगल आंसर. तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल्स हैं मींस इफ़ यू आर, आपका जो स्कोर है वो रीडिंग में काफ़ी कम आ रहा है, आप लैग कर रहे हो रीडिंग में, देन जो मॉड्यूल्स पे आपने फोकस करना है. इफ़ यू आर एमिंग फॉर 60 एंड 65 तो आपने रीडिंग एंड राइटिंग, रीड अलाउड, रीडिंग फिलिंग द ब्लैंक्स, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स एंड समराइज रिटन टेक्स्ट. रीऑर्डर पैराग्राफ अगर आप कर सकते हो तो देन वेल एंड गुड है, अगर आप नहीं कर सकते बट आप यू हैव जस्ट ट्राई टू मेक 1 or 2 सेंटेंसेज ऑफ द पेयर. सो ये स्कोर एनालिसिस था. तो अगर आपने स्कोर चेक करना है तो हम यहाँ पे ये चेक कर सकते हैं. ये हमारा रीड अलाउड का स्कोर है. तो उसके बाद अगर हम समराइज रिटन टेक्स्ट की बात करते हैं तो अगर आपने राइटिंग का स्कोर चेक करना है यू कैन चेक फ्रॉम हियर. दिस इज़ माई आंसर. सो आपने कोई भी लाइन पिकअप कर सकते हो बट समराइज रिटन टेक्स्ट में यू हैव टू फोकस की लाइन्स के बीच में ऑलरेडी कनेक्टर्स ना हो. इफ़ देयर इज़ कनेक्टर ऑलरेडी इन द लाइन्स देन अवॉइड दैट टाइप ऑफ लाइन्स. देन इट्स रीडिंग के आंसर्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हो. तो रीडिंग का ये सारे क्वेश्चन और कुछ आंसर्स के आपको एक्सप्लेनेशंस भी मिल जाएंगी, तो आप यहाँ पे ये सारा स्कोर चेक कर सकते हो. तो अगर हमने लिसनिंग का चेक करना है तो फर्स्ट क्वेश्चन था हाईलाइट करेक्ट समरी. तो ये करेक्ट समरी वाला है HCS, और ये हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड है. फर्स्ट में 5 थे देन 6. ओके, यहाँ पे 5 है आउट ऑफ 6, 1 इज़ मिसिंग. देन अगेन 4 आउट ऑफ 4. सो अगर आपको कुछ भी डाउट्स हैं रिगार्डिंग दिस टेस्ट, क्योंकि कुछ क्वेरीज मेरे पास लास्ट टेस्ट के रिगार्डिंग भी आई थी कि आप रीड अलाउड में किस तरह से बोलना है और किस तरह से आपने क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है, देन यू कैन मेल मी, और आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो. और अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए फॉर क्लासेस लाइक ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस देन यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट मी. एंड माई नंबर इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, आप वीडियोस को देख रहे हो तो इन वीडियोस को आगे भी शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.